Hello all my students of class 7th, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to Maths Online class. Yes students, in my last lecture I have explained you question number 4 to question number 6 of exercise 14.2 and today I will be explaining you from question number 7 to question number 10 of the same exercise 14.2 chapter number 14 comparing quantities. So without wasting any more time, let us begin with question number 7 of exercise 14.2 and it is out of 144 letters in a sentence 48 are vowels. There is one sentence and in that one sentence total 144 letters were there and from 144 letters 48 are the vowels, and vowels you all know, you must have learnt in your English subject that A, E, I, O, U are the vowels. So from those 144 words 48 are the vowels. Find what percentage of the letters are consonants. So we have to find the percentage of the consonants in the sentence. So see, first of all what you will do, you will write total letters. So how many letters were there? Total letters were 144 in the sentence. Now from 144 number of vowels are given and the number of vowels in the sentence is equals to 48. Now if the vowels are given, then we can easily find out the number of consonants. So number of consonants here will be total letters minus the number of vowels. टोटल में से आप vowels को subtract कर लीजिए तो आपके पास में consonant की वैल्यू आ जाएगी. So 14 minus 8 is equals to 6 and 13 minus 4 is equals to 9. So 96 आ जाएंगे आपके पास में consonant. अब क्या पूछा है? What percentage of the letters are consonant? हमें percentage of consonants पूछे तो this is the sign of percentage. Percentage of consonants find out करने के लिए आप simply क्या करेंगे? Total consonants कितने हैं? 96. तो 96 को आप लिखेंगे और total लेटर्स कितने थे सेंटेंस में? 144. तो उसको आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में. अब क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस गिवन फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपली आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन बनाना है कॉन्सोनेंट का. कॉन्सोनेंट का फ्रैक्शन बनेगा, जो कॉन्सोनेंट फाइंड आउट हुए हैं सबट्रैक्ट करके वो न्यूमरेटर में और टोटल जो लेटर्स हैं वो डिनोमिनेटर में एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. Now this 96 and 144 directly comes in the table of 48. अगर आप 48 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 से, so see 48 2s are 2 8s are 16, 2 4s are 8 plus 1 9. So 48 2s are is 96 and 48 3 times 3 8s are 24, 3 4s are 12 plus 2 is equals to 144. So 96 and 144 48 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं. 48 2 times and 48 3 times. Okay? Now nothing is cancelling here. अब इसके बाद में आप कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते हो तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 200/3%. ओके, या तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. आप क्या करिए, 200 को डिवाइड करिए 3 से. सो 3 6 18, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 will come down, again 3 6 18. Okay, 2 will come as the remainder. तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे so 66 will come in the center, remainder 2 will come in the numerator and 3 as it is will come in the denominator. So 66 is to 2/3% is the percentage of consonant in that particular sentence. Clear students? Yes. Now the next question is Geeta had 51 marbles. गीता के पास टोटल 51 मार्बल्स हैं, उसमें से she gave 27 to अमृता. उन 51 मार्बल में से 27 मार्बल्स उसने अमृता को दिए एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग टू राधिका. और फिर अमृता को देने के बाद में जितने भी बचे उसके हाफ उसने राधिका को दे दिए. सो फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ मार्बल्स डज ईच ऑफ देम हैव. तो हमें हर एक गर्ल का इंडिविजुअल परसेंटेज निकालना है कि हर गर्ल के पास में कितना परसेंटेज ऑफ मार्बल रिमेनिंग है. तो पहले देखिए गीता के पास में स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे. गीता हैड इन स्टार्टिंग 51 मार्बल्स. पहले उसके पास में 51 मार्बल्स थे. अब उसने अमृता को कितने दे दिए. अमृता हैज़, तो
अमृता के पास में कितने मार्बल्स आ गए? अमृता हैज़ 27 मार्बल्स, क्योंकि गीता ने 51 में से 27 अमृता को दे दिए। अब रिमेनिंग कितने हैं उसके पास में, कितने मार्बल्स अब बच गए हैं गीता के पास में? सो रिमेनिंग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल 51 में से 27 को माइनस करेंगे। सो 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 24 मार्बल्स। ये मार्बल्स जो थे अब गीता के पास में बच गए हैं। बट क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाफ ऑफ द रिमेनिंग शी हैज़ गिवन टू राधिका। अब राधिका को उसने कितने दे दिए? जितने भी बचे थे उसके हाफ उसने राधिका को दे दिए। तो 24 बचे थे, 24 के हाफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 24 को 2 से डिवाइड करेंगे। किसी का भी हाफ निकालने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 24 का हाफ कितना हो जाएगा? 12 मार्बल्स। तो 12 मार्बल्स उसने 24 में से किसको दे दिए? राधिका को दे दिए। तो अब गीता के पास में फाइनली कितने बच गए? अब गीता के पास में कितने थे? अमृता को देने के बाद उसके पास में 24 थे। अब 24 में से भी 12 उसने राधिका को दे दिए। तो 24 में से जब उसने 12 राधिका को दिए तो गीता के खुद के पास कितने बचे? यस, गीता के पास में भी राधिका के जितने 12 मार्बल्स जो थे वो रिमेनिंग हो गए। ओके, नाउ 1 बाय 1 हमें तीनों का परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ मार्बल्स विथ फर्स्टली हम निकालते हैं किसका? फर्स्टली हम निकाल लेते हैं यहाँ पर अमृता का। सो अमृता का जब आप निकालोगे तो अमृता का आ जाएगा आपके पास में, अमृता के पास में कितने मार्बल्स थे? 27 मार्बल्स थे। तो 27 फ्रैक्शन में करोगे आप, पहले आएगा न्यूमरेटर में, और टोटल मार्बल्स कितने थे? 51। तो जो टोटल था वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ आएगा 51, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 27 और 51 बोथ आर कैंसलिंग बाय द टेबल ऑफ 3। सो 3 9s are 27 एंड 3 1s are 3, 3 7s are 21। अब कोई कैंसलिंग नहीं हो रही है तो ये हो जाएगा 9 into 100, दैट मीन्स 900 अपॉन 17%। और अगर आप चाहें तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप 900 को 17 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 17 5 टाइम्स इज 85। ओके, सो 90 माइनस 85 इज इक्वल्स टू 5 एंड 0। नाउ 17 2 टाइम्स इज 34 एंड 17 3 टाइम्स इज 51। सो हम यहाँ पर ले लेंगे 2 टाइम्स 34। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 6, और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास में आ जाएगा 16। तो ये आ जाएगा आपके पास में रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप इसको लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 52 रिमाइंडर 16 इन द न्यूमरेटर and then 17. So 52:16 upon 17% will be the percentage of marbles with Amruta. Now after Amruta we will calculate the percentage of marbles with Radhika. तो राधिका के पास में कितने हो जाएंगे? राधिका के पास में कितने मार्बल्स थे? राधिका के पास में थे 12 मार्बल्स। तो 12 आ जाएगा हमारे पास में न्यूमरेटर में। टोटल मार्बल्स 51 इन डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल by the table of 3 only. So 3 4s are 12 and 3 17 times is equals to 51. यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 4 into 100 is 400 upon 17%। यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 400 को आप 17 से डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में निकालने के लिए। तो देखिए जब आप 400 को 17 से डिवाइड करोगे, सो यू नो 17 2 टाइम्स इज 34 आ जाएगा यहाँ पर। 10 में से 4 को माइनस करेंगे आप 6, और 0 नीचे आएगा 60। सो 17 3 टाइम्स इज 51। ओके, सो 9 विल बी द रिमाइंडर। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा 23:9 अपॉन 17%। ओके, सो दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ मार्बल्स विथ राधिका। नाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्बल्स विथ गीता। और गीता और राधिका का सिमिलर ही था तो इनका आंसर भी सिमिलर ही आएगा यहाँ पर। ओके, सो सी गीता के पास भी 12 मार्बल्स थे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 अपॉन टोटल 51 मल्टीप्लाई बाय 100। सो वापस आप जब कैंसलिंग करोगे तो सेम होगी जैसा कि आपने राधिका में करा था। तो इट विल बी 400 अपॉन 17%,
और अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालोगे सो 23:9/17% आंसर. सो दिस विल बी द सेपरेट परसेंटेज ऑफ अमृता, राधिका एंड गीता. फाइन. नाउ the next question is question number 9 and that is out of 1550 students in a school 40% are girls. टोटल 1550 स्टूडेंट्स थे एक स्कूल के अंदर जिसमें से 40% गर्ल्स थी. सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल. तो हमें स्कूल के अंदर कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं उसका एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना है. गर्ल्स का परसेंटेज गिवन है बट बॉयज़ का परसेंटेज नहीं गिवन है. सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर टोटल स्टूडेंट्स. सो टोटल स्टूडेंट्स हियर is equal to 1550. So this is the total number of students. Now percentage of girls is equal to, girls का percentage कितना है 40%. और आपको पता है परसेंटेज टोटल परसेंटेज होता है 100 का. अगर गर्ल्स 40% है तो हम बॉयज़ भी निकाल सकते हैं. परसेंटेज ऑफ बॉयज़ हम कैसे निकाल लेंगे, टोटल 100 होता है, 100 में से अगर 40 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे. येस ऑब्वियसली बॉयज़ विल बी 60%. अब क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़. पहले नंबर ऑफ बॉयज़ पूछा है तो हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे. नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल. सो स्कूल के अंदर बॉयज़ का नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल क्या है 1550, इसका आप इसके टोटल के 60% बॉयज़ हैं. सो टोटल का 60% निकाल लोगे. परसेंट, तो परसेंट को जब आप रिमूव करोगे नेक्स्ट स्टेप में 1550 इंटू 60 परसेंटेज रिमूव करोगे आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. सिंपली 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ को आप कैंसिल कर दीजिए. नाउ मल्टीप्लाई इट. सो 6 5 30, कीप 3 इन माइंड. अगेन 6 5 30 प्लस 3 33, कीप 3 इन माइंड. 6 1 6 प्लस 3 9. सो 930 बॉयज़ जो थे वो थे स्कूल के अंदर. अब गर्ल्स का निकालना है. सो हम यहाँ पर निकाल देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल. सो गर्ल्स कैसे निकाल देंगे हम, टोटल का 40%. सो टोटल कितना था हमारा 1550 इंटू 40%. नाउ आप क्या करोगे 1550 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 40% रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. सो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ अगेन कैंसिल हो जाएंगे. 155 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए. सो 4 5 20, 2 इन माइंड. अगेन 4 5 20 प्लस 2 22, 2 इन माइंड. 4 1 4 प्लस 2 620 गर्ल्स. सो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएंगे हमारे पास में 930 और नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी 620. ओके. अब आप अगर चेक करते हैं इन दोनों को ऐड करके तो वापस आपके पास में 1550 आ जाएगा. देखिए मैं आपको बताती हूँ बॉयज़ कितने थे 930 और गर्ल्स कितनी आई है हमारे पास में 620. तो देखिए 5 9 + 6 इज इक्वल्स टू 1550. तो दैट मीन्स हमारा आंसर गर्ल्स और बॉयज़ का कैलकुलेशन पूरा करेक्ट है. ओके. Yes students, so question number 10 is Ramji divided his property worth rupees 7,50,000 among his wife and 2 sons. राम जी ने अपनी प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी की उनकी रेट थी 7,50,000, उनके पास 7,50,000 थे, उसको उन्होंने अपनी वाइफ और 2 बेटों के बीच में डिवाइड किया. अब किस तरीके से डिवाइड किया, ही गेव 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ. जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसकी उसका 1/3 उसने अपनी वाइफ को दिया एंड गेव 52% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज एल्डर सन. वाइफ को देने के बाद में जो बाकी का अमाउंट बच गया उसका 52% उसने अपने एल्डर सन यानी कि बड़े बेटे को दिया एंड द रेस्ट टू हिज यंगर सन. और उसके बाद में जो बच गया बड़े बेटे को देने के बाद में वो उसने अपने यंगर सन यानी कि छोटे बेटे को दिया. सो फाइंड द शेयर ऑफ ईच ऑफ देम. तो हमें हर एक का शेयर यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो सी देखिए टोटल प्रॉपर्टी, टोटल वर्थ मीन्स रेट ऑफ प्रॉपर्टी. सो उसकी प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ क्या गिवन है क्वेश्चन में, इट इज़ गिवन 7,50,000. सो दिस इज द टोटल वर्थ ऑफ हिज प्रॉपर्टी. नाउ शेयर गिवन टू हिज वाइफ को कितना शेयर गिवन है 1/3. सी इट इज़ रिटन 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी इज गिवन टू द वाइफ. सो टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी ₹7,50,000. ओके. सो इसका 1/3 यानी कि
मल्टीप्लाई बाय 1/3, ऑफ का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, तो टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 निकालेंगे हम। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड देन 1 2 3 4 0, that means 2,50,000. So from 7,50,000, 2,50,000 was given to wife. So this much was given to his wife. अब बोला गया है जो रिमेनिंग अमाउंट है, तो हम रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल था 7,50,000, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वाइफ का शेयर है। सो वाइफ का शेयर कितना गया था, 2,50,000. So this you will subtract. So after subtracting, what you will get? You will get rupee 7 minus 2 is equals to 5 and 5 minus 5 is equals to 0. That means 5 lakh will be remaining after giving to his wife. Now वाइफ को देने के बाद में जो 5 लाख बचा है उसमें से क्या लिखा है, 52% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज एल्डर सन. सो हम शेयर ऑफ एल्डर सन निकालेंगे यहाँ पर, शेयर ऑफ एल्डर सन. सो एल्डर सन का शेयर क्या निकलेगा, 52% ऑफ रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग बचा है उसका 52%. सो यू नो 52% को हम रिमूव करेंगे तो 100 आ जाएगा और रिमेनिंग कितना बचा था, 5 लाख. वाइफ को देने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी में से 5 लाख रुपीज़ बच गए थे. तो देखिए 2 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे. अब आप मल्टीप्लाई करिए. सो मल्टीप्लाई करने पर 5 2 ज़ा 10, देन 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 26, देन 1 2 3 1 2 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे. दैट मीन्स 2,60,000 रुपीज़ जो थे वो किसको मिले हैं, एल्डर सन को. Okay, elder son got rupees 2,60,000. Now the remaining, see the rest to his younger son. अब जो बाकी का बचा हुआ है वो younger son को मिल जाएगा. तो अब वापस आप remaining निकाल दीजिए. तो जब तक वाइफ को दिया था तब तक उसके पास में कितना remaining था, 5 लाख. ओके, सो इस 5 लाख में से 2,60,000 जो कि एल्डर सन को दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो 5 लाख में से जब 2,60,000 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,40,000 रुपीज़. सो ये मिल जाएगा यंगर सन को. सो यंगर सन का शेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2,40,000. ओके, टोटल प्रॉपर्टी 7,50,000 थी, उसमें से 2,50,000 वाइफ को मिला, 2,60,000 एल्डर सन को एंड 2,40,000 यंगर सन को. Clear students? So that's all for today. I have given you explanation from question number 7 to question number 10. Now the remaining 5 questions, next 5 questions of this same exercise I will be giving in my next lecture. Till then, take care of yourself. Thank you so much.